Welcome to MDC Learning, Standard SYBCom, Subject Business Law. Hello learners, today we will talk about Indian Companies Act 2013 Part 2. Under that we will focus on definition and register of members. So let's go further and let's know about the introduction of members, the definition of member as per Section 2 of Indian Companies Act 2013, Part 2. Then we will move further toward the register of members, which things need to be maintained in the register of members. And last one, we will go with the place of keeping and inspection of register and the returns. So let's go further and see the introduction of a member. If I talk about the term member in connection with the word company, it will simply mean that one person who has agreed to become the member of a company by entering his name into the register of a member will be a member of a company. This particular first point clearly explains who will be the member of a company. The person who willingly, without any coercion or without any force, agrees to become a member of a company and willingly registers his her name in the register of a company, register of a member of a company, then he will become a member of a company. Such agreement, such an agreed thing can be in writing to become a part of the company, and it has to be handed over to the company. The name of the member of a company is entered as a beneficial owner in the record of depository. The member of a company will be benefited in some and other way. So, he will be called as a beneficial owner. Whether you are a shareholder or a debenture holder or a member of a company in some other way, you will be a beneficial owner in a company. So here on your screen, there is a simple introduction of the word member that will give you a short explanation of what the member is. We will go further and see the definition of a member. Definition of a member is in section 2 subsection 55 of Indian Companies Act 2013 part 2. So now on your screen you can see the 3-step clear-cut definition of a member. The first point itself says that the subscriber of the memorandum of a company shall be deemed to have agreed. स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया है फर्स्ट पॉइंट में दैट ही हैव अग्रीड एंड ही विलिंगली वांट टू एंटर इनटू अ कंपनी एज अ मेंबर. सो फर्स्ट वन इज सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम. हमने जब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़ा था, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का टॉपिक पढ़ा था, वहां हमने बात की थी फर्स्ट सब्सक्राइबर्स ऑफ द कंपनी जिनका रजिस्टर बनाना पड़ता है और जिनके नाम को हमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और कंपनी के रजिस्टर वगैरह में एंटर करना होता है. स्टूडेंट्स, आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक अ कोरिलेशन बिटवीन व्हाट आई टॉट एंड व्हाट आई एम टीचिंग. तो यहाँ पे वही बात है, जिन लोगों ने अग्री किया है, हामी भरी है कंपनी का मेंबर बनने के लिए एंड उनका नाम उनके अग्री होने के अकॉर्डिंग और उनके विलिंगनेस के अकॉर्डिंग इंटर किया गया है कंपनी के मेंबर वाले रजिस्टर में, दैट पर्सन विल बी अ मेंबर ऑफ अ कंपनी. सो फर्स्ट पॉइंट अगर शॉर्ट में कहें तो सब्सक्राइबर्स ऑफ द मेमोरेंडम विल बी अ मेंबर ऑफ द कंपनी. सेकेंड वन इज एवरी अदर पर्सन, हर कोई इंसान जो अग्री करता है इन रिटर्न टू बी अ मेंबर ऑफ अ कंपनी, वो हर एक इंसान जो लिखित में लिख के, प्रॉपर पेपर होता है उसका, कंपनी के स्टैम्प्स होते हैं, उस पेपर पे प्रॉपरली लिख के मीन्स इट कैन बी हैंड रिटन, इट कैन बी टाइप्ड इन अ कंप्यूटर, लिख के उसने हामी भरी है दैट ही वांट टू बी अ मेंबर ऑफ अ कंपनी एंड
उसकी हामी भरने के, रिटर्न में उसके हामी भरने के बाद his name is getting entered into the register of a company, such person will be a member of a company. So हमने अभी तक 2 पॉइंट्स देखे. फर्स्ट वन इज सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम. सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम विल बी member of the company. Second one is a person who agrees in a writing to be a member of a company will be a member of a company, of course, and that person's name will be entered in the register of a members. Third one, students, third one is every person holding equity share of the company. As you know students, आपने accountancy में पढ़ा होगा कि there are type of shares. शॉर्ट में बात करूं तो प्राइमा फेसिया सब हमारे पास दो होते हैं शेयर्स. फर्स्ट इज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड सेकेंड इज इक्विटी शेयर कैपिटल. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कुछ ही लोगों को प्रेफरेंशियल बेसिस पे दिया जाता है, वो जनरल पब्लिक के लिए ओपन नहीं होता है. जहां की दूसरी तरफ बात करें तो इक्विटी शेयर कैपिटल या इक्विटी शेयर जनरल पब्लिक के लिए ओपन होता है. आप या मैं, हमारे तरह के आम आदमी लोग भी इस तरह के शेयर्स को खरीद सकते हैं. सो ये थर्ड वन है. जो पर्सन कंपनी की इक्विटी को यानी शेयर को खरीदता है उसका नाम भी, इक्विटी अगर आप खरीद रहे हो, शेयर्स खरीद रहे हो, तो आप विलिंगली अपने पैसे को कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो. एंड इन सच अ सिचुएशन एज वेल यू विल बी entered into a company as a beneficial owner of a company and your name will be written, your name will be written in a register of a company. So student, this was a clear short definition of member which is given in section 2 subsection 55 of Indian Companies Act 2013 part 2. So I hope this was clear students. This is a definition, so try to keep it as it is and try to study it. Let's go further and see the register. Now on your screen you can see the register of members which is given in section 37 of Indian Companies Act. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पे डिस्कशन हम करने वाले हैं. जब रजिस्टर ऑफ मेंबर्स की बात आती है तो ये 5 पॉइंट्स को आपको अपने ध्यान में रखना है कि जो ये रजिस्टर ऑफ मेंबर्स है वो बनता कैसे है. फर्स्ट पॉइंट, कंपनी को रखना पड़ेगा, रखना ही नहीं पड़ेगा, मेंटेन भी करना पड़ेगा. मेंटेन करना यानी समय समय पे अगर किसी मेंबर का एड्रेस चेंज होता है, किसी मेंबर का फोन नंबर चेंज होता है या किसी मेंबर का कोई नया मेंबर कंपनी में एंटर होता है, तो ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए रजिस्टर बनेंगे और अलग अलग टाइप ऑफ मेंबर्स के लिए अलग अलग रजिस्टर बनेंगे. जैसे कि रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, यहाँ पे सारे जनरल लोग आएंगे. Register of debenture holders. Debenture holders are depositors, investors in a company. They are depositing their valuable money. They are investing their valuable money into the company. Third is person holding shares of the company. हर एक type of members के लिए अलग register, अलग format में properly maintain किया जाना चाहिए. ये बात हमारी first point में लिखी गई है. Second point, index of the name. Of course, very important. उनका नाम क्या है, उनके बारे में सारी डिटेल्स, इसका प्रॉपर इंडेक्स बना के लिखना होगा. थर्ड इज रजिस्टर एंड इंडेक्स ऑफ बेनिफिशियल ओनर. जो हाईएस्ट बेनिफिशियल ओनर्स हैं उनका रजिस्टर, उनका इंडेक्स एक अलग तरीके से मेंटेन करना पड़ेगा क्योंकि वो बेनिफिशियल ओनर है, वो हाई प्रोफाइल ओनर्स हैं जो उन्होंने बहुत ही ज्यादा पैसा कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है, तो उनका नाम जो है वो भी रजिस्टर में और इंडेक्स में प्रॉपरली आना चाहिए. फोर्थ जो रजिस्टर एक बनेगा हमारा वो फॉरेन रजिस्टर बनेगा. ये रजिस्टर फॉरेन मेंबर्स के लिए रहेगा. ऐसे लोग जो फॉरेनर्स हैं और जो हमारी कंपनी में किसी भी तरीके से इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये रजिस्टर उनके नाम पे होगा और इनमें इस तरह के रजिस्टर में उनकी सारी डिटेल्स होंगी. फिफ्थ पॉइंट इज हाईली इंपॉर्टेंट, फेलियर ऑफ रजिस्टर मेंटेनेंस. मान लीजिए कोई कंपनी है जिसने रजिस्टर मेंटेन नहीं कर पाई है, रजिस्टर मेंटेन करने में फेल हो गई है. इन सच ए सिचुएशन फाइन उस कंपनी को पे करना पड़ेगा. ये जो फाइन होगा ये 50,000 रुपए से लेके 3 लाख रुपए तक, 50,000 रुपए से लेके
3 लाख रुपए तक ये फाइन भरना पड़ सकता है। कुछ अगर समय ज्यादा बीत जाता है तो अगर कंटिन्यूइंग फेलियर होता है तो 1,000 रुपए पर डे पे करना होता है। कंटिन्यूइंग फेलियर मीन्स अगर 6 महीने से ज्यादा हो गए, आपकी कंपनी को इनकॉर्पोरेट हुए, रजिस्टर हुए 6 महीने से ज्यादा हो जाता है तो कंपनी को 1,000 रुपया पर डे फाइन पे करना होगा। तो this is all the procedure about register of a member students that a company has to maintain. चलिए आगे चलते हैं and we will see place of keeping and inspection of registered returns. Students, this part is very easy. First one is registered office. जो कंपनी है वो अपना जो रजिस्टर होगी वो कहाँ रखेगी, उसे इंस्पेक्शन करना है, उसकी चेकिंग करनी है, तो कहाँ पे सबसे आसान तरीका होगा जाके चेकिंग करने के लिए। अब आप जानते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑफिस डिफरेंट प्लेसेस पे होते हैं, तो डिफरेंट प्लेसेस पे अलग अलग जगह जाके रजिस्टर चेक करना तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। तो यहाँ पे यही बात की गई है, अगर रजिस्टर को रखना है तो रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखना चाहिए। एक ऑफिस होगा जो प्राइमरी ऑफिस होगा, हेड ऑफिस होगा, वहां पे आपको अपना रजिस्टर और एनुअल रिटर्न की कॉपीज को प्रॉपरली संभाल के रखना होगा। सेकेंड इज ओपन फॉर इंस्पेक्शन बाय एनी मेंबर, डिबेंचर होल्डर एक्सेट्रा। यहाँ पे बहुत ही आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की गई है, अगर कोई मेंबर ऑफ अ कंपनी या कंपनी का डिबेंचर होल्डर कंपनी के डॉक्यूमेंट्स को चेक करना चाहता है तो बिल्कुल वो कंपनी में जाके उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को चेक कर सकता है। हाँ, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो चेकिंग बिजनेस हार्स में हो। बिजनेस हार्स मीन्स अगर कंपनी के काम करने का समय सुबह 9 से रात के 6 बजे तक है तो कंपनी के डॉक्यूमेंट की चेकिंग सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे के बीच में ही करनी पड़ेगी। जब समय बीत जाएगा यानी बिजनेस हार्स बीत जाएंगे तो आप कंपनी में जाके किसी भी तरह की चेकिंग नहीं कर सकते हैं। एंड सेकेंड बात ये कहा गया है, एक्सेप्ट व्हेन दे आर क्लोज्ड अंडर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। कभी कभी क्या होता है कि कुछ कंपनियों के इंस्पेक्शन आप नहीं कर सकते हो, कुछ गवर्नमेंट कंपनी के इंस्पेक्शन आप नहीं कर सकते हो। इन सच ए सिचुएशन आप जाके चेकिंग यानी इंस्पेक्शन नहीं कर सकोगे। तो दिस वाज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट देखते हैं, मेंबर्स कैन टेक एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एनी रजिस्टर और इंडेक्स। एक्सट्रैक्ट क्या होता है? जेरोक्स, प्रिंट आउट। अगर आप चाहते हैं तो आप कंपनी में जाके किसी भी रजिस्टर या किसी भी इंडेक्स का जेरोक्स निकलवा सकते हैं। जेरोक्स आप वही निकलवा सकते हैं, एक्सट्रैक्ट उसी डॉक्यूमेंट का आप ले सकते हैं जो डॉक्यूमेंट आपके रिलेटेड हो, आपसे रिलेटेड हो। यू कैन नॉट टेक एनी डॉक्यूमेंट विच यू वांट एज पर योर विलिंगनेस और जस्ट यू वांट टू रीड दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। You have to take only those documents, those index, those register which is beneficial to you, जो आपको किसी भी तरह से कनेक्ट करते हो या आपको देखने के लिए जरूरी हो, वही डॉक्यूमेंट आप देख सकते हैं। फोर्थ वन, रिफ्यूजल ऑफ इंस्पेक्शन। देखिए, पहली बात, कंपनी तो रिफ्यूज कर ही नहीं सकती एक्सेप्ट किसी कोई गवर्नमेंट कंपनी है या हाईली कॉन्फिडेंशियल बातें हैं, ऐसी बातें तो आपको बताई भी नहीं जाएंगी। आपको रिफ्यूज कर दिया जाएगा, आपको निकाल दिया जाएगा, आपको नहीं बताया जाएगा, लेकिन बाकी सारी बातें तो आपको जानने का हक है। अब यहां देखते हैं फोर्थ पॉइंट, रिफ्यूजल ऑफ इंस्पेक्शन। पर्सन इन लाइबल इज डिफॉल्ट। अगर कोई पर्सन को कहा गया है कि हम तुम्हें डॉक्यूमेंट नहीं दिखाएंगे, तुम डिफॉल्ट में हो, तुम गलत कर रहे हो, तो उस पर्सन को कानून को ध्यान में रखते हुए डॉक्यूमेंट नहीं दिखाए जाएंगे। फिफ्थ वन, सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्पेक्शन। नो डाउट स्टूडेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट आए दिन इंस्पेक्शन करती है, कभी इनकम टैक्स, कभी आरबीआई, कभी हमारे पुलिस ऑफिसर्स, कभी कोई और डिपार्टमेंट आए दिन इंस्पेक्शन करते ही रहते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहे, जिस तरह से चाहे, जहां चाहे कंपनी के इंस्पेक्शन, रजिस्टर्स, बुक्स, रिटर्न सब कुछ चेक कर सकती है। सो आई होप दिस वाज क्लियर स्टूडेंट। द प्लेस ऑफ कीपिंग एंड इंस्पेक्शन ऑफ रजिस्टर एंड रिटर्न्स इज इन 5 points. Returns means the annual returns. So these are the 5 important points. Thank you for attending today's lecture. I see you in another lecture.
Take care and remember to work hard.